The today topic is manual vacuum aspirator. This is the teaching station. तो इसको teaching के according ही हम attempt करेंगे. सबसे पहले task test लेते हैं. You're SR5 in the gynae ward. Your junior PG1 wants to learn about MVA. 10 minutes for each task होता है. 10 minutes में cover करेंगे. Most of the time कमांड दी जाती है कि आपने इंडिकेशंस कॉन्ट्रा इंडिकेशंस यू हैव टू टेल अबाउट द प्रोसीजर. बाजू का नहीं भी कमांड दी जाती हैं तो इट्स ओके. ईदर वे वी विल कवर ऑल ऑफ दीज थिंग्स. वट एवर द प्रोसीजर हम उसकी इंडिकेशन प्री रेक्विजिट्स कॉन्ट्रा इंडिकेशन बताते हैं, प्रोसीजर बताते हैं, कॉम्प्लिकेशंस बताते हैं एंड हम अपना स्टेशन क्लोज करते हैं जैसे हमारा टीचिंग स्टेशन होता है. सो दिस इज़ अ पिक्चर ऑफ MVA. इसके पार्ट्स देख लें. प्लंजर है, कॉलर स्टॉप है, बैरल है, वाल्व, इनर, एवरीथिंग. स्टेशन वी विल स्टार्ट. माय नेम इज़ मरियम, वन ऑफ द रजिस्ट्रार. रैपिड बिल्डिंग से स्टार्ट करेंगे इन द फ्रेंडली इन्वायरमेंट एंड स्टूडेंट की आई टू आई कॉन्टेक्ट मेंटेन करेंगे सो दैट इट लुक्स लाइक कि आप अच्छी रैपिड बिल्डिंग के साथ हैं. व्हाट्स योर नेम, हाउ इज़ एवरीथिंग इन द डिपार्टमेंट. आपने बुलिंग रूल आउट करनी है. So I learned that you are new here in the department. Is everything fine in the department? Then you will ask that why you specifically want to learn about MVA. She will tell you that I have seen someone and I have seen my seniors, but I don't know it. You would say, okay, very good. This is a very good topic. So what specifically you want to learn about MVA? She will tell you that I want to see the procedure. I want to learn the parts and how is it performed, right? Then we will set an agenda. I will then we will ask about the background knowledge, that what do you know about MVA. You will put an agenda, then you will tell it, okay, together today we will learn about the topic, and then you will start the session. We will also encourage her that in case in between if she does want to ask any question, she can ask the question. And also first we will do it on I will tell you about the procedure and then we will do it on the dummy. You will tell about the parts of on the dummy. You will tell about the parts like this is the plunger handle, this is barrel with the marking, a collar stop, and then there is the cap release button, and there are the silicone tubes with the markings on it, and they are for the specific gestation age. So this is basically MVA. Now you will start that first of all we will do the preparation, obtain the consent, tell the patient pros and cons, do the cervical preparation with the misoprostol, and at the same time when we give misoprostol almost 30 minutes to 1 hour before the procedure, we also give the NSAIDs. We conduct the baseline observations. We also attach the vitals to the patient. After asking the patient to empty the bladder, we will put the patient in lithotomy position. उसको drape करेंगे, vaginal examination करेंगे एंड प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपने MVA प्रोसीजर परफॉर्म करना है, लाइक यू असेंबल द इंस्ट्रूमेंट्स एंड देन do the pinch wall. We will close the pinch wall and we'll pull the plunger all the way back until the arm is locked. When the arm is locked, then we will visualize the cervix. At the time of cervical visualization, you will ask the patient if she can tolerate or not. Most of the time patient tolerate कर जाती हैं. अगर कर जाती हैं तो आपका NSAIDs and misoprostol के साथ it will go well. अगर पेशेंट टॉलरेट नहीं करती देन व्हाट यू नीड टू डू, आपने उसको पैरासर्वाइकल ब्लॉक लगाना है. आई हैव अनदर वीडियो, उसमें पैरासर्वाइकल ब्लॉक एक्सप्लेन कर देंगे. एंड देन आपने सेक्शन कैन्यूला इंसर्ट करना है. फर्स्ट आपने सेक्शन कैन्यूला इंसर्ट करना है और फिर आपने अपना लोडेड या चार्ज्ड जिसमें वैक्यूम ऑलरेडी आपने क्रिएट कर दिया है उसको साथ में अटैच करना है. एंड देन आपने उसका आगे से पिंच वॉल बटन रिलीज़ कर देना है. इसमें इसका मतलब है कि आपका वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा. एंड देन इन द 180 to 360 मोशन आपने उसको वैक्यूम की हेल्प से अपने रिटेन प्रोडक्ट्स ऑफ कंसेप्शन सक्शन कर लेने हैं. राइट जब 80% ऑफ दिस रेंज फुल होगी तो इट मीन्स के नाउ यू नीड टू एम्प्टी इट. आप क्लोज करेंगे वाल्व को और फिर उसे सक्शन ट्यूब इनसाइड रहने देंगे. आपका जो कैन्यूला है आप उसे डिटैच कर लेंगे. ऐसे 2 to 3 टाइम्स में जब आपको लगे कि कैविटी इज़ एम्प्टी एंड यू हैव द साइंस ऑफ एम्प्टीनेस विच आर ग्रिटी सेंसेशन, प्रिंग फ्रॉथ या फिर सर्वाइकल हग ऑन कैन्यूला होगा तो आपने उसको रिमूव कर देना है. इट मीन्स कि नाउ द कैविटी इज़ एम्प्टी. यू कैन ऑल्सो डू अल्ट्रासाउंड गाइडेड, आप विजुलाइज भी कर सकते हैं. पोस्ट प्रोसीजर कवर करेंगे, शिफ्ट करेंगे रिकवरी रूम में, इंस्पेक्ट द प्रोडक्ट्स फॉर कम्प्लीटलीनेस, हिस्टोपैथोलॉजी के लिए भेजना है, डिसअसेंबल करेंगे इंस्ट्रूमेंट्स को और डिसइंफेक्टेंट में
पोर करेंगे। उसके बाद आपने देखना है कि पेशेंट के वाइटल्स, पेशेंट वाइटली स्टेबल है, कोई कॉम्प्लिकेशन डेवलप नहीं हुई, रिकवरी में 1 to 2 आवर्स रखेंगे। डे केयर प्रोसीजर है, पेशेंट को एडमिट करने की ज़रूरत नहीं होगी। वही जो हम करते हैं, डॉक्यूमेंट करेंगे, डीब्रीफ करेंगे एंड डिस्चार्ज विद द रेड फ्लैग साइन। अपने पीजी से अपने पूछना है, इनकरेज करना है कि डिड यू अंडरस्टैंड द प्रोसीजर। बीच में कोई भी एक बात आप उससे पूछ सकते हैं कि सो यू टेल मी व्हाट आर द साइंस ऑफ एम्प्टीनेस। तो शी विल टेल यू कि येस दिस इज़ द pink frothy blood and gritty sensation, cervical head. You will say okay, very good, you're a very good learner. And you also encourage her that feel free to ask any question, and if she asks to repeat anything, you can also repeat, right? And also you can ask for the feedback that how was the session, did you learn it, and also you will give the material at the end. Also there are some principles of procedure, ये आप लोग देख लीजिएगा, सिंपल से हैं। डिस्क्रिप्शन है कि कितनी ml सेक्शन क्रिएट की जाती है, कितना लाइक इट इज़ 6110 to 660 मिलीमीटर्स ऑफ मर्करी, एंड जो वो बैरल होता है वो 60 ml का होता है, राइट। 1 सेंटीमीटर अवे आपने और से सेक्शन की न्यूला को रखना होता है। ये आप लोग देख लीजिएगा, बहुत इजी सा है। सिलेक्शन क्राइटेरिया होता है, आपने रूल आउट करना होता है कि एमवीए के लिए सूटेबल कौन सा है। जनरली 8 to 10 वीक्स की जो गेस्टेशन एज की सैक होती है, दिस इज सूटेबल। हीमोडायनामिकल स्टेबल होना चाहिए। पैरस वुमेन होगी तो और अच्छी डायलेटेड होगी, आपको डायलेट करने की ज़रूरत नहीं होगी। दिस इज़ ऑल्सो गुड। क्राउन ट्रम्प लेंथ लेस देन 25 होनी चाहिए, राइट। एंड ऑल्सो पेशेंट को कोई एट द टाइम ऑफ अनस्टेबिलिटी, हीमोडायनामिक अनस्टेबल कोई इन्फेक्शंस ना हो। नॉट सूटेबल वो होंगे जो 10 वीक से ज़्यादा हो, पेशेंट को पैनिक अटैक्स की हिस्ट्री हो, सर्वाइकल स्टेनोसिस हो, एंड ऑल्सो कोई भी यूट्राइन मैलफॉर्मेशन वगैरह वो भी नहीं कर सकते। आपने एंड पे अपना स्टेशन क्लोज करना है। आपने उसे बताना है कि यू कैन प्रैक्टिस विद मी ऑन द डमी फर्स्ट एंड देन वी विल परफॉर्म द प्रोसीजर ऑन द रियल पेशेंट विच यू आर रेडी, वेन एवर यू आर रेडी। एंड देन फीडबैक, हाउ इज़ द सेशन टूडे, ये ज़रूर पूछना है। फीडबैक जो टीचिंग स्टेशन है उसमें फीडबैक के मार्क्स हैं, तो आपने उसे ज़रूर पूछना है कि हाउ वाज द सेशन, डिड यू लर्न इट, एम आई एबल टू मेक यू अंडरस्टैंड दिस, डू यू हैव एनी क्वेश्चन और नीड फर्दर clarification on this step. She will say yes, I understand it, and then you will close the station. I will provide you with additional study material and links where you can learn more about MVA, and you will say nice to meet you and good luck, thank you. And so that's it.